ہندوستان کے معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد اختر رضا خان ازہری کا اس ہفتے انتقال ہو گیا۔ انہیں ازہری میاں کے لقب سے نوازا جاتا تھا۔ ازہری میاں عالم اسلام کے ممتاز مفکر اور روحانی شخصیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کے پڑپوتے اور جانشین تھے۔ ان کی تدفین بریلی کے ازہری گیسٹ ہاؤس میں ہوئی، جس میں لاکھوں مرید نے شرکت کی۔ مولانا اختر رضا کی نماز جنازہ ان کے اکلوتے صاحبزادے مولانا اسجد رضا نے پڑھائی۔ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان بریلوی کی تدفین میں شرکت کے لیے ہندوستان بھر سے لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ 75 سالہ ازہری میاں کی رحلت کے بعد سے بریلی شہر غم میں ڈوب گیا۔ لاکھوں لوگوں کی آمد کے پیش نظر شہر کے راستے بند رہے اور ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ سے زیادہ افراد بریلی میں پہنچے تھے۔ بھیڑ کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کو 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں 5 گھنٹوں کا وقت لگ گیا۔ پاکستان میں 25 جولائی کو عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل اختتام پذیر ہوا اور اس کے بعد ووٹ شماری کی گئی۔ انتخابات میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی اور یہ طے ہو گیا کہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے۔ نتائج کے اعلان کے بعد جہاں پی ٹی آئی کے حامی جشن میں ڈوب گئے، وہیں پاکستان میں حزب اختلاف کی تمام جماعتوں نے دھاندلی کے الزامات لگائے اور فوج کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان انتخابات میں سال 2013 کے انتخابات کے مقابلے پیپلز پارٹی کی کارکردگی بہتر رہی اور نواز شریف کی مسلم لیگ نون پارٹی کو کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ مبصرین کی رائے میں پاکستان کے جو معاشی اور سیاسی حالات ہیں، اس میں عمران خان کے لیے اچھی حکومت پیش کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اس سے عالمی امن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی کے بعد ایرانی فوج کے کمانڈر نے ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو امریکہ کے پاس جو کچھ ہے ایران اسے تباہ کر دے گا۔ میجر جنرل قاسم سلیمان نے مزید کہا کہ جنگ امریکہ نے شروع کی ہے لیکن اسے ختم اسلامی جمہوریہ ایران کرے گا۔ واضح رہے، ٹرمپ نے ٹویٹ کے ذریعے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا، امریکہ کو کبھی دھمکی مت دینا۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے اور کشیدگی اس وقت سے اور بڑھ گئی جب سے امریکہ نے ایرانی جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں ٹی ڈی پی کے ذریعے پیش کی گئی عدم اعتماد کی تحریک ایوان میں گر گئی، لیکن حزب اختلاف اپنی بات رکھنے میں کامیاب رہا۔ حزب اختلاف کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک کا مقصد حکومت کو گرانا نہیں بلکہ ایوان میں حکومت کے خلاف اپنی بات رکھنا تھا اور حزب اختلاف اس میں کامیاب بھی رہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تحریک عدم اعتماد پر جواب دیتے ہوئے وہی سب کچھ کیا جس کی ان سے امید کی جاتی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے مطابق وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، غلط بیانی سے کام لیا، زبان اور عمل کے ذریعے ڈرامہ کی شکل میں اپنی بات پیش کی اور حکومت کے کاموں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ عدم اعتماد کی اس تحریک کے خلاف 325 جبکہ تحریک کی حمایت میں محض 126 ووٹ ڈالے گئے۔ تمام طرح کی قیاس آرائیوں پر روک لگاتے ہوئے کانگریس نے باضابطہ طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ 2019 کے عام انتخابات میں راہل گاندھی ہی پارٹی کا چہرہ ہوں گے۔ پارٹی کے اعلیٰ پالیسی ساز ادارے کانگریس ورکنگ کمیٹی نے اپنی میٹنگ میں عام انتخابات کے ساتھ مختلف ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں یکساں خیالات والی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور تال میل کرنے کی ذمہ داری پارٹی کے صدر راہل گاندھی پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 20 جولائی کو پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد پر بحث کے دوران کانگریس صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہیں رافیل گھوٹالے کا شراکت دار قرار دے دیا۔ تبھی سے یہ معاملہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ کانگریس کا الزام ہے کہ اس معاملے میں حکومت نے انل امبانی کی اس کمپنی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے جو معاہدے سے محض 10 روز قبل ہی وجود میں آئی تھی۔ کانگریس صدر راہل گاندھی نے مودی حکومت پر الزام لگاتے ہوئے کہا،
यूपीए के जरिए जब राफेल सौदा हुआ था तो एक तैयारे की कीमत 520 करोड़ रुपए थी। उसके बाद मोदी जी फ्रांस गए और कीमत जादू से 1600 करोड़ रुपए हो गई। कौमी आवाज़ के पास मौजूद दस्तावेज़ात से ये पता चलता है कि अनिल अंबानी ने 2015 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से महज 10 दिन पहले ही अपनी कंपनी तश्कील दी थी, जिसे राफेल सौदे के बाद ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचा। राजस्थान और हरियाणा के मेवात इलाके में इस हफ्ते मॉब लिंचिंग का मसला छाया हुआ है। अलवर के रामगढ़ इलाके में नूह के रहने वाले अकबर खान के कत्ल के बाद लोगों में सख्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है। अकबर खान को गाय स्मगलिंग के शक में भीड़ ने पीट कर मार डाला था। अकबर कत्ल मामले में ये सनसनीखेज इंकशाफ भी हुआ कि उसे सिर्फ गौरक्षकों ने ही नहीं बल्कि पुलिस ने भी पीटा था। रिपोर्टों के मुताबिक गौरक्षकों के अकबर को पीट कर नीमजान कर देने के बाद पुलिस को इस वारदात की इत्तला मिल गई थी, लेकिन पुलिस ने शदीद जख्मी अकबर को कई घंटों बाद अस्पताल पहुंचाया। अलमिया ये है कि गायों को अकबर से 1 घंटा पहले गौशाला पहुंचा दिया गया और पुलिस वालों ने इस बीच चाय नाश्ता भी किया। हालांकि बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ कि अकबर की मौत उन जख्मों की वजह से ही वाक़ हुई है जो उसे गौरक्षकों ने दिए थे। फिलहाल मेवात में इस मामले को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है और हर रोज़ एहतजाजी मुजाहिरा और मीटिंग की जा रही है। साथ ही वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और सदर के नाम मकतूब भेजने का सिलसिला भी जारी है। इस हफ्ते महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर तहरीक चला रहे मराठा तबके का एहतजाज उस वक्त मुश्ताल हो गया जब एहतजाज के पहले दिन एक नौजवान ने गोदावरी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस वाक़े के बाद से मराठा तबका मज़ीद मुश्ताल हो गया। मुश्ताल मराठों ने पहले महाराष्ट्र बंद बुलाया और उसके बाद मुंबई बंद का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र बंद के दिन एक और नौजवान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली और एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। बाद में एहतजाज को वापस लेना पड़ा। एहतजाज और बंद के दौरान महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि बीजेपी का मकसद अयोध्या में मंदिर की तामीर कराना नहीं है, बल्कि वो राम मंदिर के नाम पर इक़्तिदार पर काबिज होना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोशिश है कि आइंदा इंतखाबात में राम मंदिर का सहारा लेकर फिर से इक़्तिदार तक पहुंचा जाए। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मंदिर तामीर करना किसी पार्टी का काम नहीं है और मंदिर तामीर कोई भी पार्टी हुकूमत में रहते नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तामीर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ही हो सकती है या फिर साधु संत मिलकर मंदिर तामीर करा सकते हैं। स्वरूपानंद सरस्वती ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान पार्लियामेंट में दी गई राहुल गांधी की तकरीर की तारीफ की। मुल्क की राजधानी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे सबका सर शर्म से झुक गया। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के इंतखाबी हल्के में रहने वाली 3 बच्चियों की मौत भूख की वजह से वाक़ हो गई। बच्चियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक भी हो गई कि बच्चियों की मौत ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से ही हुई है। इन बच्चियों का बाप रिक्शा चलाता था और माँ ज़हनी बीमार है। ज़राए के मुताबिक कुछ वक्त से तीनों बच्चियाँ बीमार चल रही थी और घर में फाका कशी के हालात थे। इस मामले ने मरकज़ और रियासती हुकूमतों के काम काज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 28 जुलाई की शब दुनिया भर में सदी का तवील तरीन मुकम्मल चांद ग्रहण नज़र आया। सदी के इस तवील तरीन मुकम्मल चांद ग्रहण का मुल्क और बैरूनी ममालिक में दीदार किया गया। हालांकि दिल्ली और मुंबई में मखला अब्र आलूद होने की वजह से लोग इस शानदार नज़ारे से महरूम रह गए। चांद ग्रहण के मुख्तलिफ मराहिल की कुल मुद्दत 3 घंटा 55 मिनट रही। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने 21वीं सदी के इस सबसे देर तक नज़र आने वाले चांद ग्रहण की तस्वीर जारी की हैं। खलाई साइंस में जहां चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की इस हवाले से अहमियत है कि इस वक्त साइंसदान कई तरह की तहकीक को अंजाम देते हैं और कायनात को समझने की कोशिश करते हैं, वहीं हिंदू मज़हब के लोग इस मौके को बदशगुन मानते हैं और गंगा में गुस्ल करते हैं। बनारस और इलाहाबाद में चांद ग्रहण के इख्तिताम के बाद गंगा के घाटों पर लोगों ने डुबकियां लगाईं।
पिछले कुछ दिनों से मस्जिदों में लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल और खुली जगह में नमाज अदा करने से मुताल्लिक़ तरह तरह के बयानात सामने आए और अब एक मरतबा फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के सरबराह राज ठाकरे ने लबकुशाई की है। उन्होंने लाउड स्पीकर के ज़रिए अजान देने और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर एतराज़ जाहिर किया है। उन्होंने मुसलमानों से पूछा कि आखिर उनको अजान के लिए लाउड स्पीकर क्यों चाहिए, इससे वो क्या दिखाना चाहते हैं, और मज़ीद कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़कर मुसलमान जाम क्यों लगाते हैं। उन्होंने मुसलमानों से सवाल किया है कि मुसलमान घरों में नमाज क्यों नहीं अदा करते। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास के ताल्लुकात के बारे में मीडिया में कई तरह के फसाने बने, लेकिन अब इत्तलात हैं कि दोनों ने अपने रिश्ते को शादी में बदलने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा की 34वीं सालगिरह के मौके पर यानी कि 18 जुलाई को दोनों ने मंगनी कर ली। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की वो मशहूर अदाकारा हैं जो हॉलीवुड में भी मशहूर और मकबूल हैं। निक और प्रियंका की मुलाकात साल 2017 में हुई थी और जब से ही दोनों की नज़दीकियां बढ़ गई थीं। खबर है कि प्रियंका अक्टूबर में निक के साथ शादी कर लेंगी। दिल्ली में इस हफ्ते मुशायरा जश्न नौबहार का इनेकाद किया गया। जश्न बहार ट्रस्ट के तहत नौजवान नस्ल को फ़रोग़ देने के मकसद से मुनक़्क़िद किए गए इस मुशायरे में उर्दू और हिंदी के नौजवान शोरा ने अपने कलाम पेश करके नाज़रीन को लुत्फ़अंदोज़ कर दिया। पहले मुशायरे जश्न नौबहार का इनेकाद दिल्ली में वाक़ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इंतहाई दिलकश और अदबी माहौल के दौरान हुआ। इस मौके पर जश्न बहार ट्रस्ट की बानी कामना प्रसाद ने कहा, तब्दीली कुदरत का मिजाज है और तरक्की की ज़ामिन भी है। आज बदलती हुई दुनिया को नौजवान जहनों से बेहतर कौन समझ सकता है, इसलिए नौजवान नस्ल की फ़िक्र को मंजर आम पर लाना ज़रूरी है।